Okay, fine. Okay, yeah. Welcome all guys. Okay. So in the last lecture, we have covered the main important point related to the team formation. Okay, still people are joining. I don't. Okay, fine. Okay. So in the last session, I'll quickly go through. Like in the last session, we have seen about different positions, team formations within the organization, right? So in the team, there are different members like project manager, business analyst, right? The Then, screen not visible. uh, guys, can someone please confirm? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Yes, Ma'am, yes. Yes, please, sir. yeah, yeah, try to rejoin. Yeah, okay. Okay. Thank you, thank you. Okay, so yes, so first role we have seen, that is the project manager, then business analyst, right? Then we have team lead in the team, then we have developers, then we have testers, DevOps engineers, technical writers, and system architect. So each person having their different roles and responsibilities, right? So out of that, we'll be morely focusing on the tester part, right? So surrounding to that, we have covered some of the important points, roles and responsibilities, right? So going forward, we are also going to see like what are the different roles, who is going to perform which task. जो related to stuff रहेगा, that will going to see. So this is all general about the team formation, right? Okay, let me, okay. So later on, we have covered some questions surrounding to cloud. So we have seen there are three different cloud providers in the market, that is your Google GCP cloud, Microsoft Azure cloud, and Amazon AWS cloud, right? So yeah, and we also have seen like what is difference in between your local computer, what is the specification part, right? And later on, we have seen like, okay, guys, stop the annotation please. Okay, let me disable from here. Okay, let me reshare once, so that, okay, fine. Okay, so yeah, till the that we have covered covered with the team formation. Okay, let me open with the some of the point. Okay, so yes. Fine. So in like from today's session, we'll be covering a basic model related to the software development process, right? And we'll see in detail about it. Okay. So the important model related to the software development, ये जो भी software development का process है ना, इसमें important model है, that is a ESDLC, software development life cycle, right? जो भी सॉफ्टवेयर का एंटायर जर्नी रहेगा, जो भी इसका लाइफ साइकिल रहेगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, डिफरेंट फेजेस है इसके. सो विल बी डिस्कसिंग मोर. ओके, हमें इस पे है ना सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे जो भी आपकी डिफरेंट फेजेस है फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विल कवर अंडर दिस मॉडल. ओके, और इसी के डिफरेंट वर्जन्स है जो मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, हम इसके डेफिनेशन के साथ चलते हैं. पहले तो लेट्स सी by definition what is the SDLC. Okay, okay, so see, focus here guys. Okay, so by definition, software development lifecycle is the process used by software industry, or we can say IT industries, to design, develop, and test the software. In simple word, SDLC stands for software development life cycle, and it is a process. Okay, it is a one kind of process which is used by software industries. Okay, why? In order to design, develop, and test the software. Okay, that is what the simple definition. Okay, so what is SDLC? In a single line, we can say SDLC stands for software development life cycle. It is a process used by software industry, that is your IT industry, to design, develop, and test the software. Okay, so yeah, we are going to see different phases. Okay, so this one is the definition. SDLC stands for software development life cycle. What it is? A process used by software industry to design, develop, and test the software. Okay, so in case of any organization, okay, let me put some point here. In case of any organization, there are three P's, very important P's are there. One is P, means people, that is the employee.
Okay, second P stands for process and third P stands for product. That is the software, we can say. Okay, software product. Okay, software in general. Okay, because in a company people are the first pillar, process is the second pillar, and the company's product is the third pillar, right? So surrounding to this there are different phases. Surrounding to this there are different phases for this SDLC. Okay, so that will going to see into the detail. So first we'll see what all are the different phases. Okay, so first one is the requirement analysis, guys. Second one is the development phase. Second one is the design phase. Third one is the development phase. Okay. Fourth one is the testing phase. Fifth one is deployment and maintenance. You can put it as a sixth as well. Okay, fine. There will be no issue. We just need to understand what all are the different phases. Okay, so there will be always question like what all are the different phases of SDLC model. Okay, so there are 6 phases. First one is the requirement analysis, second phase is the designing, third phase is the development, fourth phase is the testing, fifth phase is the deployment, and last phase is nothing but the maintenance of the software. Okay, we'll see in detail about each phase. Okay, so जो भी सॉफ्टवेयर है इन केस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, राइट, जो जो भी प्रोसेस के थ्रू बनता है उसी के लिए एक प्रीडिफाइंड मॉडल है, रेफरेंस मॉडल है इन मार्केट, दैट इज द एसडीएलसी. एसडीएलसी stands for software development life cycle. What is SDLC? It is a process. Okay, I will try to elaborate more over here. What is, okay, what is SDLC? So in this situation, SDLC stands for software. Your its full form is development life cycle. Okay, software development life cycle. That is the SDLC stands for. Then what is it? It is a process, right? Okay, it is a process, right? Then who use the like who is using this process? Software industry. Who will be using this process? That is the IT industry. Okay, in simple we can say IT industry or your software industry. IT industry or your software industry. Okay, then why they are using it? Why to use this SDLC? In order to develop, right? Sorry, in order to design first, right? In order to design, develop, and test the software, right? Okay, so these are some keywords. What is SDLC? It is the software development lifecycle and it is the process. Okay, who is using this process and this model? IT industry or software companies, right? Why they are using this model? Because in order to design, develop, and test the software, they are following certain processes, right? फॉर एग्जाम्पल हमें किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करना है, सो प्रीवियसली हमें क्या करना पड़ता था? फॉर्म फिलअप करना पड़ता था. नाउ डेज ऑल्सो वी आर अप्लाइंग डायरेक्टली ऑनलाइन थ्रू अ पोर्टल, बट वहां पे भी जाके हमें सर्टन इंफॉर्मेशन फिलअप ही करनी पड़ती है, राइट? सो दैट इज अ बैंकिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू ओपन द अकाउंट. इन अ सिमिलर मैनर इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है, तो उसके लिए एक सर्टन प्रोसेस फॉलो होती है, and that process is nothing but your SDLC, software development life cycle. It is a process. कौन यूज करता है? Who is using it? IT industries यूज करती है, software industries यूज करती है. Why these people are using this process? In order to design, develop, and test the software. Okay, so when comes to the company side, there are 3 P's very important. We always should remember. P stands for people, the person or group of people who is working for a particular company. P stands for process. Like in case of company, we have certain stages, certain steps predefined, right? We should follow the same step.
एज लाइक हम जब भी स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, राइट, वहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स प्रोसेस होता है, सिलेबस का, हर एक चीज का, यूनिफॉर्म का, राइट। सो हमें वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, राइट। एंड लास्ट थिंग इज द प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट हियर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ओके। अगर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं तो इसमें टोटल, इन टोटल 6 फेजेस है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब जो भी क्लाइंट की, जो भी मार्केट की नीड है, आई विल ट्राई टू इलेबोरेट मोर, ओके। जो भी क्लाइंट की नीड रहेगी, क्लाइंट की नीड रहेगी या मार्केट की नीड रहेगी, राइट, मार्केट की नीड रहेगी, ओके। बिकॉज बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड भी हम सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं और बेस्ड ऑन मार्केट नीड भी हम सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। बट सॉफ्टवेयर बनाने की जो कंपनीज क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है उनको हम बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। और जो कंपनीज मार्केट के नीड के ऊपर काम करती है, मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम करती है, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बट दोनों भी कंपनीज क्या करती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट नेक्स्ट फेज क्या होता है, दैट इज द डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। लेटर ऑन उसका क्या होता है रे, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, इन अ नेक्स्ट फेज टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। once the development is done, the software is deployed and it is available for public use or user use, right. And once the all is well, like software is developed, it is ready for use of public, right, publicly it is available to use, then in the next phase we need to do its maintenance on डेली बेसिस और वेन एवर इट रिक्वायर्ड, राइट। मतलब उसको अपडेट भी करना पड़ता है, उसमें जो भी डिफिकल्टीज है उसको भी फिक्स करना पड़ता है, राइट। सो these are all 6 phases, okay. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन अ सिंपल वर्ड, हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट देगा। और इन केस हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, देखिए, जो मार्केट की नीड के अक्रॉस प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे काम करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम क्लाइंट की बात करते हैं तो जैसे हमने बोला, राइट, सर्विस बेस्ड कंपनीज, रिलेटेड टू दैट आईटी कंपनीज की बात की, इन्फोसिस की, राइट। एंड विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द क्लाइंट की बात की, जैसे एसबीआई की। सो एसबीआई की जो भी नीड रहेगी उसके अक्रॉस जो भी रिक्वायरमेंट कलेक्शन रहेगा, या जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उन वो भी मार्केट का रिसर्च करते हैं और उसके अक्रॉस उनके सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते रहते हैं, राइट। सो फर्स्ट फेज ऑलवेज रहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो अगर हम पर्टिकुलर रोल की बात करते हैं, जैसे हमने टीम फॉर्मेशन देखा, राइट। सो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, क्लाइंट एंड से जो भी नीड कलेक्ट करने का काम है वो करेगा आपका बीए, दैट इज द बिजनेस एनालिस्ट, सॉरी, ओके। यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं फॉर ईच फेज, ओके। सो यहाँ पे गाइज 2 काइंड ऑफ थिंग्स रहेंगे, वन इज योर प्रोजेक्ट, ओके। इन केस ऑफ योर सर्विस बेस्ड कंपनीज, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है दोनों का डिफरेंस। ऑलमोस्ट चीजें तो सेम ही रहेगी, बस नेमिंग में डिफरेंस रहेगा। प्रोजेक्ट पे जो कंपनीज काम करती है वो होती है आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। और सेकंड थिंग, जो भी प्रोडक्ट हम जिसे बोलते हैं, जिस पे काम करती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ओके। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, राइट, ओके, फाइन। और यहाँ पे लाइक जो भी प्रोजेक्ट की नीड रहेगी वो कहाँ से आएगी, हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द क्लाइंट एड। जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, राइट, वो हमें कौन बताएगा, क्लाइंट बताएगा, राइट। जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी क्लाइंट बताएगा। फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग हियर, सो बीए, that is the business analyst will be coordinating from client side, right. so जो भी requirement analysis उसका रहेगा वो बीए साइड पे रहेगा, उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देखा था, राइट। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होगा ऑन अ प्राइमरी लेवल, लाइक दोनों जगह पे भी, ओके, इन केस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड इन केस ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज एज वेल। सो आप क्या क्या रहेगा, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा, ओके। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें जो भी क्लाइंट ने नीड बताई है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसका प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश
लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, जो भी क्लाइंट की नीड है. सो एज अ SBI यूजर आई वांट अ लॉगिन पेज वेयर माय कस्टमर शुड बी एबल टू लॉग इन. सो सिमिलर काइंड ऑफ उनका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा यहाँ पे. ओके, सो दिस फर्स्ट वन फेज इज योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. ओके, लेटर ऑन बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे, राइट. सो बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट अभी जैसे डिजाइनिंग टीम, मतलब डिजाइनिंग टीम, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, ये सारे लोग टेक्निकल पर्सन है, राइट. और ये जो पर्टिकुलर बिजनेस पर्सन रहते हैं ये मोरली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिजनेस साइड, ये बिजनेस के रिलेटेड ज्यादा फोकस रहते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, यहाँ पे BA का ज्यादा रोल रहता है, एंड फॉर कोऑर्डिनेशन PM का रोल रहता है, राइट. दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट. सो यहाँ पे टेक्निकल टीम को देने के लिए नेक्स्ट फेज का जो डॉक्यूमेंट चाहिए दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें होगी, मतलब रिक्वायरमेंट के सराउंडिंग एनालिसिस होगा, और उसका लेटर ऑन जो भी डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्जन होगा दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. ओके, इन अपकमिंग सेशंस ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको डेमो डॉक्यूमेंट शोकेस करने वाला हूं. ओके, सो एज ऑफ नाउ जस्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए. ओके, सो फर्स्ट वन प्राइमरी लेवल पे जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है दैट इज द BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. उसी के ऊपर एनालिसिस करके जो नेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट, फंक्शनल डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. ओके, ये होता है फर्स्ट फेज ऑफ योर SDLC. लेटर ऑन देखिए सेकंड फेज है दैट इज द डिजाइन फेज. ओके, सो इन केस ऑफ डिजाइन फेज क्या होता है ना, बेसिकली जो भी आपकी सॉफ्टवेयर लाइक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हम सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्लाइंट की बात करते हैं दैट इज द SBI. ओके, क्लाइंट की बात करते हैं SBI, राइट. सो जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है उसका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, राइट. उसका बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया. अभी उसी सेम चीज को क्या करना है ना, डिजाइन करना है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट पे होम पेज कैसा दिखेगा, अबाउट अस पेज कैसे दिखेगा, लॉगिन पेज कैसा दिखेगा, रजिस्ट्रेशन पेज कैसा दिखेगा, इसका है ना डिजाइनिंग होता है. सो डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, राइट, मार्केट में. सो अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो क्या आता है, राइट, फोटोशॉप आता है, और डिफरेंट डिफरेंट CS टूल्स आते हैं, राइट. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है फोटोशॉप में हम फोटो एडिट कर सकते हैं, जो चाहे कलर्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट, फॉन्ट वहाँ पे एड अप कर सकते हैं. सिमिलरली डिजाइन पार्ट पे ना डिफरेंट डिफरेंट एड ऑन टूल रहते हैं जिस पे डिजाइनिंग टीम काम करती है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स आपको समझने हैं डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से. एक है HLD, ओके, HLD, एंड अनदर वन इज LLD. ओके, सो HLD आपका होता है हाई लेवल डिजाइन. ओके, हाई लेवल डिजाइन, ठीक है. एंड LLD होता है, यहाँ पे ये दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द डिजाइनिंग. लो लेवल डिजाइन, सॉरी, ओके, LLD stands for your low level, sorry, low level design. ठीक है, इसका हम थोड़ा है ना ऑन अ वेबसाइट भी प्रेजेंटेशन देखेंगे वंस वी डन विद दिस सम थ्योरी पार्ट. ओके, सो ये दो टाइप के डिजाइन, मतलब क्या आपके इमेजेस फॉर्म करेंगे ये लोग बेसिकली, मतलब एक्चुअल वेबसाइट बनाने से पहले पहले है ना इसका लेआउट फॉर्मेट बनेगा इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग. सो उसमें टू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, वन इज योर हाई लेवल डिजाइनिंग एंड सेकंड वन इज योर लो लेवल डिजाइनिंग. अगर हम सिमिलरली बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे घर के डिजाइन, राइट, हमें अगर कोई भी बंगलो या फ्लैट सिस्टम्स कोई भी बिल्डअप करना है तो हम क्या करते रहे, बिल्डिंग आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसका 2D या 3D मॉडल बनाते हैं, राइट. 2D या 3D मॉडल बनाते हैं, राइट. सो इन ऑर्डर टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, राइट. मतलब घर बनने से पहले हम उसका क्या करते हैं, डिजाइनिंग बिल्डअप करते हैं, सो दैट हमें आइडिया आता है कि लाइक डिजाइन कैसा दिखेगा, कौन सा डिजाइन कहाँ पे सही लगेगा, राइट. सो सिमिलरली जो 2D डिजाइन होता है ना उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जो भी आपके वर्कर्स होते हैं, राइट, जो भी आपके सेंटरिंग वर्कर्स होते हैं, जो भी आपके प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे स्टील कौन सा यूज करना है, हमें कितने का यूज करना है, कौन से साइज का करना है, कितने वेट तक जाना है, स्टेयरकेस की
लेंथ कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी स्लैब की, सारी चीजें कहाँ पे डॉक्यूमेंट होती है इस डिजाइन में। और उसी के अकॉर्डिंग क्या बनती है, बिल्डिंग बनती है, राइट, उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनती है। इन अ सिमिलर मैनर जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है ना, सो आप ऐसे समझ लो लो लेवल डिजाइन मतलब एकदम बेसिक लेवल पे होता है, मॉड्यूल वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आपके घर का जो डिजाइन होता है उसमें भी आपका कॉलम का साइज क्या है, राइट, हर एक बीम का, छोटे छोटे बीम का साइज क्या है, कहाँ पे कितने हाइट पे रहेगा स्लैब, कहाँ पे कम रहेगा, कहाँ पे ज्यादा रहेगा, ये एकदम प्रिसाइज मैनर में आपका सारा कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, लिस्ट होता है, राइट। इन ए सिमिलर मैनर आपके लो लेवल डिजाइन में ना सब कुछ विद डायमेंशन, विद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होता है, हर एक चीज का डिजाइनिंग होता है। एंड ऑन अ हाई लेवल क्या होता है ना, मतलब आपका काइंड ऑफ आप समझ लो कि उसका पूरा ओवरव्यू उसमें होता है, ओके। मतलब छोटे छोटे मॉडल को कनेक्ट करके ऑन अ हाई लेवल आपका एंटायर पेज कैसे दिखेगा। अगर हम फ्रंट पेज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक का ही फ्रंट पेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, उनका लोगो है, यहाँ पे सम बेसिक हेडलाइन हेडिंग टैगलाइंस है, यहाँ पे यूजर नेम पुटअप करने के लिए, पासवर्ड के लिए, ये हर एक चीज का हर एक चीज क्या है, छोटा छोटा मॉडल या फीचर है, राइट। सो इसी का है ना, ये हो गया आपका जो आपको फ्रंट फेस दिख रहा है ना, दैट इज द हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन। और हर एक फीचर के सराउंडिंग अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका हर एक का खुद का एक पेज है, देखिए, राइट। ये फॉरगॉट पासवर्ड के लिए अलग पेज है। देन अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक डिफरेंट पेज है। तो हर एक एक्सक्यूज मॉडल मी के, सर, सॉरी, यस मैम। आप कुछ अलग स्क्रीन दिखा रहे हो क्या नोटपैड प्लस प्लस के अलावा भी? यस, वन मोमेंट, सॉरी सॉरी, यस यस, अभी विजिबल है। हम्म। यस Yes, सर, sir. यस सर, ओके नाउ ओके इट इज ग्रेट, यस विजिबल। यस, ठीक है मैम, यस। ऐसे बताते जाइए क्योंकि फ्लो में है ना, पता नहीं चलता एक्चुअली क्या शेयर किया है, ओके। ठीक है, थैंक यू, ओके। चलो, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम ना डिजाइन फेज की बात कर रहे हैं, राइट। हमने फर्स्ट फेज क्या बात की रहे, रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो एनालिसिस में क्या, रिक्वायरमेंट में क्या होता है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में, सो जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है, तो वो क्या बोलेगा कि हमें यहाँ पे लोगो चाहिए, हमें यहाँ पे हमारा ऐसे टैगलाइन चाहिए, और फर्स्ट पेज पे यूजर आता है तो उसको लॉगिन के लिए विंडो चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजों का है ना रिक्वायरमेंट हमें क्लाइंट बताता है, राइट। अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे काम कर रहे हैं ना, तो ये सारा कुछ चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो उनका बेसिकली मार्केट का रिसर्च रहता है कि मार्केट में फेसबुक जैसे और कौन कौन से एप्लीकेशन है, हम अपने खुद के एप्लीकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं, राइट। ये सारा कुछ स्टडी होता है मार्केट का। एंड बेस्ड ऑन दिस स्टडी ओनली दे विल बी डॉक्यूमेंटिंग सम, लाइक बिजनेस पर्सन डॉक्यूमेंट करते हैं जो BRD बोलते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसी के ऊपर एक थोड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनता है कि बस यहाँ पे हमें फ्रंट पेज पे ईमेल आईडी भी चाहिए और फोन नंबर भी चाहिए, और ये जो इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, यहाँ पे हमें पासवर्ड भी चाहिए, यहाँ पे हमें लॉगिन बटन चाहिए, यहाँ पे हमें फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनलिटी भी चाहिए, राइट। मतलब सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो डेवलपर समझ सके, जो आगे के टेक्निकल पर्सन है ना वो समझ सके, उस हिसाब से जो सेकंड डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसमें ये सारी चीजें लिस्ट होती है, ओके। सो ये दो डॉक्यूमेंट तो हो गए आपके ऑन लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। नेक्स्ट वन, जैसे हमने सेकंड फेज की बात की, दैट इज द डिजाइनिंग। सो डिजाइनिंग में है ना, ये आपका हाई लेवल हो गया कि मतलब फ्रंट पेज पे मुझे ये सारे इतने इतने मॉडल चाहिए और ऐसे ऐसे दिखने चाहिए, फेसबुक ऐसे ब्लू कलर में दिखना चाहिए, ब्लैक कलर में, ये थोड़ा व्हाइटिश ग्रे कलर होना चाहिए बैकग्राउंड के लिए, राइट, जो भी है, यहाँ पे ग्रीन कलर होना चाहिए। ये सारा कुछ आपका है ना डिजाइनिंग में कवर होगा। और आप किसी भी पर्टिकुलर मॉडल पे क्लिक करते हैं ना, तो हर एक मॉडल का देखिए अंदर जाने के बाद उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो ये हो गया आपका लो लेवल डिजाइनिंग। मतलब इन शॉर्ट ये फोटोशॉप करते हैं, आप ऐसे समझ लो एज ऑफ नाउ कि कहाँ पे क्या दिखेगा। और बेस्ड ऑन दिस नेक्स्ट फेज में जो भी डेवलपर है ना इसको कोड करेंगे ऑन कोडिंग साइड। अगर मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये इसका कोड है जो डेवलपर ने किया है, राइट। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। इसका एक्चुअल जो कोड रहता है ना, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस रहते हैं कोड के लिए, ओके। सो यहाँ पे वो जस्ट आपको समराइज करके कोड है, पूरा कोड विजिबल नहीं होता, नहीं तो हम सेम फेसबुक को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, राइट। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हिडन रहती है।
ये जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए शो किया, राइट। सो सिमिलरली ये हो गया आपका लो लेवल डिजाइन, एंड जो फ्रंट आपको दिखेगा दैट इज द हाई लेवल डिजाइन। वापस आते हैं इन आवर डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी तक थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहाँ पे 2 टर्म्स लिखता हूँ मैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। मतलब रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है हमें, ओके, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, इट वुड बी रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। मतलब पहले तो हमें कस्टमर की या मार्केट की रिक्वायरमेंट जाननी है, उसके बेस पे हमें क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, और उसके बेस पे हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, सो दैट फर्दर टीम उसको पढ़ के समझ सके, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट पेज, जहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट समझ ली कस्टमर से, क्लाइंट से, राइट, या मार्केट से। उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया सो दैट टीम को विजिबिलिटी रहे। सेकंड फेज आता है डिजाइनिंग, कि बस हमें सॉफ्टवेयर तो बनाना है, बट वो दिखेगा कैसे, राइट। जब हम ब्राउजर पे उसको एक्सेस करेंगे तो वहां पे विजिबिलिटी कैसे रहेगी, उस चीज के लिए हम उसका डिजाइन बनाते हैं, सिमिलर टू योर होम का डिजाइनिंग या फ्लैट का, प्लॉट, जो भी है बिल्डिंग का डिजाइनिंग। वहां पे 2D 3D डिजाइनिंग रहता है, और अगर हम 2D की बात करते हैं ना, उसमें बहुत सारा डिटेल होता है, राइट। सो सिमिलर मैनर में 2 लेवल के डिजाइन होते हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। अभी के लिए आपको ये समझना है, ओके। सो ये डिजाइन डॉक्यूमेंट और ये आपके फंक्शनल बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इससे के ऊपर है ना आपका नेक्स्ट फेज डिपेंड है, दैट इज द डेवलपमेंट फेज। सो डेवलपमेंट फेज में आपके कौन काम करेगा, डेवलपर्स काम करेगा। गाइस प्लीज बी ऑन म्यूट। I have a doubt in यस design. यस, यस पूछे मैम। रेस्ट ऑफ गाइस प्लीज म्यूट, ओके। यस मैम, जस्ट अनम्यूट करके पूछिए, ओके। Sir, in here you display the Photoshop. हम्म। So for designing, can we use the Photoshop software or what नहीं else? नहीं, ये बेसिकली है ना, ये मैम अपना काम ही नहीं है यहाँ पे जो वर्क हाँ करते हैं ना, हाँ हाँ यस। हमारा काम कहाँ पे है ना, ये टेस्टिंग फेज टेस्टिंग में है। ओके मैं आपको कंप्लीट एंड टू एंड जर्नी दिखा रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, सो ओके दैट ओके आप जब भी काम करोगे ना, आपको पता चलेगा यार रिक्वायरमेंट का काम कौन करेगा, बीए करेगा, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजर में उसमें इन्वॉल्व रहेगा। डिजाइनिंग का काम कौन करेगा, यहाँ पे हमने जैसे बात की ना ऊपर, देखिए यहाँ पे हम्म सिस्टम आर्किटेक्ट बोला था, राइट। हाँ हाँ हाँ, यस तो ये लोग है ना इसमें ये फॉर्म करते हैं बेसिकली, इनके हाँ साथ अदर भी टीम होती है, ओके। नहीं आई अंडरस्टूड दैट बट व्हाट इज माय एग्जैक्ट डाउट इज कि हम्म जो डिजाइनिंग फेज होता है उसमें मतलब एकेडमिक्स में मैं हमने पढ़ा है इसलिए पूछ रही हूँ कि हाँ बताए हाँ हाँ बोलिए। कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं लाइक डीएफडीज एंड यस यूएमएल यस हाँ यस हाँ सो वो पार्ट भी डिजाइनिंग के अंडर ही आता है ना यस यस, इसमें है ना बेसिकली दो में ज्यादा इन डेप्थ क्यों नहीं जाता, क्योंकि इस हमें है ना इन चीजों का ओवरऑल पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 इंजीनियर्स ओके का, यहाँ पे 2 लेवल्स पे काम होता है, यूआई एंड यूएक्स बोलते हैं बेसिकली इसको। यूआई इज योर यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स इज योर यूजर एक्सपीरियंस, ओके। मतलब यस यूजर इंटरफेस आपको ये पर्टिकुलर अगर नोटपैड है तो इसका यूजर इंटरफेस आपको कैसा दिख रहा है, राइट। और अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे टाइप करना इजी है, जूम करना, जूम माइनस करना इजी है, तो यूजर के पर्सपेक्टिव से भी डिजाइन बनाए जाते हैं। सो ये डिजाइनिंग में आता है मोरली। हमें जानना है कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि डिजाइनिंग भी एक फेज होता है जहाँ पे डिजाइन इंजीनियर्स काम करते हैं, राइट। और वहां पे 2 लेवल के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल, राइट। ये टाइप से हमें पता होना चाहिए, सो ओके दैट आप इसके ऊपर एडिशनल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। या जब भी कोई मीटिंग चल रहा है तो अगर बोलते हैं कि हाँ हमारा एलएलडी पे काम चल रहा है, ये एचएलडी पे काम चल रहा है, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, राइट। यस सो एग्जैक्टली हाँ, यस करेक्ट, ओके। सो यहाँ पे ये 2 इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, या टीम बोलो आप, यूआई यूआई एंड यूएक्स, ये टीम डिफरेंट टीम होती है, ओके। या आपकी टीम का पार्ट भी हो सकती है, क्योंकि इनका मेजर रोल होता है डेवलप मतलब डिजाइनिंग में, ओके। यस यस ठीक है, तो ओके। मतलब बीआरडी इंटरव्यू और के वक्त एफआरडी जो का मेन डिफरेंस बताइए हेलो। सर। बीआरडी और एफआरडी का मेन डिफरेंस बताइए। हाँ, मेन डिफरेंस इन द सेंस आप ऐसे समझ लो, जो बीए पर्सन क्या होता है ना बेसिकली, उसको ये समझता है कि फॉर एग्जांपल एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई का कोई भी नॉर्मल यूजर है तो उसका मेन काम क्या है, फर्स्ट तो उसको अकाउंट क्रिएट करना होगा, राइट।
अकाउंट हम्म। क्रिएट करने के बाद उसके सारा कुछ लाइक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो भी है वो एनेबल करेगा। लेटर ऑन वो वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ऊपर जाके ट्रांजेक्शन करेगा। करेक्ट। सो ये जो बिजनेस फ्लो है ना कि मतलब उसको पहले तो अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, लेटर ऑन उसका ये चीजें एनेबल होनी चाहिए, उसके बेसिस पे उसको ये फीचर दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का एम्प्लॉय तो उसको बहुत सारे लोन के फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, राइट। उसको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स भी देती है बैंक्स। सो ये जो बिजनेस पार्ट है ना इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है, राइट। मतलब ये बिजनेस, एसबीआई का जो बिजनेस है, बैंकिंग का जो बिजनेस है, वो बिजनेस साइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए डेवलपर आपको क्या करना है कि डिस्काउंट देना है नहीं, ये आपका डिसीजन नहीं है, राइट। ये तो क्लाइंट का डिसीजन है। तो जो भी क्लाइंट डिसीजन लेता है ना उनके बिजनेस के ऊपर हमें कौन सा ऑफर चलाना है, हमें क्या चेंजेस चाहिए, हमें कहाँ पे कौन मतलब कौन सा फीचर ऐड करना है, तो ये चीजें है ना क्लाइंट बताता है। और क्लाइंट की सुनने के लिए कौन बैठा होता है, तो बिजनेस एनालिस्ट। कि भाई बता तुझे क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम हमारी जो भी टीम है उनको कन्वे करेंगे और उसके हिसाब से वो बिल्डअप करेंगे। तो इनिशियल लेवल पे वो क्या करता है, जो भी क्लाइंट ने बोला है ना वो एज इट इज मतलब प्लेन लेवल ऑफ इंग्लिश में वो राइट अप कर देता है। ओके। आप जब डॉक्यूमेंट ये फिजिबल होगा ना आपको पता चलेगा। ओके। और उसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा है ना ऐड ऑन करते हैं सो दैट टेक्निकल टीम समझ पाए कि मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोगो रहेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ये फीचर रहेगा, वो फीचर रहेगा। वो थोड़ा टेक्निकल साइड पे है ना, यहाँ पे डिटेल रहता है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल बिजनेस लेवल पे रहता है कि एज अ बैंकिंग यूजर उसको क्या चाहिए, और यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है ना वो यहाँ पे थोड़ी इन्वॉल्व होती है। क्लियर। यस सर। हेलो। ओके ओके Sir. यस फाइन। सर क्लियर। यस, नेक्स्ट सेशन में मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा आपको ऑन द स्क्रीन सो दैट आपको मोर क्लैरिटी रहेगी। अभी जस्ट मैं टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट जब भी हम इस पे जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे हाँ बीए जो रहेगा ना ये लेवल का डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, लेटर ऑन ये लेवल का डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, डिजाइन टीम है ना ऐसे ये डॉक्यूमेंटेशन बनाता है। तो हमें क्या चीजें यूज करनी है ना एट द एंड ऑफ डे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होती है कंपनी में जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। Sir. ओके परफेक्ट। यस यस। तो जब इंटरव्यू में एसडीएलसी एक्सप्लेन करना पड़ता है या बताना फेजेस पड़ता बताना है, है, फेजेस हाँ, तो बताना है। डिजाइनिंग के अंदर सिर्फ हाई लेवल डिजाइन एंड लो नहीं लेवल डिजाइन वो बताना। बोलना ही वो ये है ना एकदम बेसिक मॉडल है, इसके ऊपर और भी मॉडल्स हैं। मतलब आप ये हम्म समझ लो हम्म 1 to 9 है, इसके ऊपर आप कितने भी नंबर बना सकते हैं इस तरह से, ये एकदम बेस्ट मॉडल है। ओके। ओके ओके हाँ ठीक है, वहां पे आपको सिंपली क्या पूछेगा आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि प्लीज व्हाट इज एसडीएलसी, तो आपको सिंपल हम्म बताना है एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर इट इज अ प्रोसेस मॉडल इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द सॉफ्टवेयर, राइट। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस, तो हर एक फेज जो 6 फेजेस है ना उसके हिसाब से हमें चलना है। आगे भी है, ओके हर ऐसे है ना आपको 3 से 4 मॉडल मिलेंगे, हर एक मॉडल में सिमिलर फेजेस है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, तो तब तक आपके बाय हार्ट हो जाएंगे सारे फेजेस। ओके 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 ठीक है थैंक चलो यू ग्रेट। थैंक यू। ओके नो इश्यूज गाइस, जस्ट है ना मतलब एज ऑफ नाउ है ना पूरे डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो, हाई लेवल पे चलो, क्योंकि ये रिपीटेशन होगा बहुत बार रिपीटेशन होगा सेम चीजों का। ओके ठीक है चलो। सो यस अभी तक हमने कवर की थे 2 फेजेस की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट बोलेगा उसके हिसाब से हम एक बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके हिसाब से थोड़ा मैनेजमेंट टीम बैठ के क्या बनाएगा, टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाएगा। यहाँ पे मतलब हो सकता है कि कोई अदर डेवलपमेंट टीम से भी बंदा हो, सिस्टम आर्किटेक्ट भी हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ओके डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, बट हम थोड़ा एक रेफरेंस लेवल का लेके चलते हैं कि किसका क्या काम है, राइट। अगर कंपनी में पर्टिकुलर बंदा नहीं है स्पेसिफिक रोल के लिए तो एक बंदा 2 काम भी कर सकता है, ठीक है उसके हिसाब से। बट हम थोड़ा आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ठीक है अभी तक हमने देखिए ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट की नीड समझ ली, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाया, देन उसका डिजाइनिंग भी किया हाई लेवल पे लो लेवल पे, जैसे फेसबुक का पेज देखा है। ओके तो अभी नेक्स्ट लेवल पे क्या है, उसको एक्चुअल कोड करना है, जैसे हमने राइट क्लिक करके देखा था ना कोडिंग वाला पार्ट। अगर मैं पेज पे जाता हूँ वापस से, ओके ये वाला अगर मैं यहाँ पे व्यू सोर्स करता हूँ तो देखिए एक्चुअली ये है ना बहुत ही छोटा है, मैं गूगल का ही पेज आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये है ना बहुत सारा कोडिंग है ना बेसिकली डेवलपर ने किया होता है, पर्टिकुलर पेज विजिट मतलब
व्यू होने के लिए, राइट। सो ये सिमिलर कोडिंग कौन करेगा? डेवलपर करेगा, राइट। तो इनका काम है कोडिंग के लिए। डेवलपर्स क्या करेंगे? बेसिकली उसी को कोडिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं, कई प्रोग्रामिंग बोलेंगे, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। कोडर्स बोलेंगे, डेवलपर्स बोलेंगे, राइट, प्रोग्रामर्स बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इनका काम है जो भी डॉक्यूमेंट मिला है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिला है, राइट, जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट मिला है, उसी के हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर को कोड करना पड़ेगा, सो दैट अगर जब भी ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में आएगा या एक्चुअल में उसका वेबसाइट बनेगा, तो यहाँ पे फेसबुक ब्लू कलर में दिखना चाहिए, यहाँ पे ऐसी टैगलाइन होनी चाहिए, यहाँ पे यूजर नेम इनपुट करना आना चाहिए, पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन होना चाहिए, क्रिएट अकाउंट पे गया तो ये अकाउंट का साइन अप का पेज ओपन होना चाहिए, हर एक फीचर चलना चाहिए। तो ये बेसिकली डेवलप करने का काम कौन करेगा? डेवलपर करेगा, राइट। डेवलपर करेगा, कोडिंग करेगा। और ये पर्टिकुलर जो फीचर्स है ये चल रहे हैं, नहीं नहीं चल रहे, सही से चल रहे हैं, कौन से डेटा के साथ चल रहे हैं, राइट, ये चेक करने का काम अपना है बेसिकली। मतलब आप समझ रहे हो, बनाने का काम डेवलपर का है और इसको टेस्ट करने का, चेक करने का काम अपना है, राइट। ठीक है, हम वो देखेंगे नेक्स्ट फेज में। ओके, सो जो डेवलपर्स है वो तो सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, राइट, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस। तो डेवलपर जो बेसिकली है, सी यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, जावा हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, पीएचपी हो सकता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। सो डेवलपर आइडियली अगर आप देखते हो, तो अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, जैसे लास्ट भी शायद बात की थी मैंने, फ्रंट एंड डेवलपर। देन नेक्स्ट होते हैं बैक एंड डेवलपर आपके, ठीक है। ओके, बैक एंड डेवलपर, एंड थर्ड वन पर्सन इज द फुल स्टैक डेवलपर। अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो, ओके, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो होते हैं एंड्रॉयड डेवलपर, राइट, एंड्रॉयड डेवलपर, ओके, डेव डेवलपर, राइट। या आप आईओएस की बात करें, एप्पल की बात करें तो आईओएस डेवलपर, राइट, ओके, डेवलपर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपका जिस भी तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रहेगा उसके हिसाब से आपकी डेवलपमेंट टीम रहेगी। ओके, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टीम रहेगी आपकी, बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब आपको ये पर्टिकुलर फेसबुक का पेज आपको जो विजिबल है, इसको डेवलप करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल टीम है, दैट इज द फ्रंट एंड। यहाँ पे जैसे ही आपने फॉर एग्जाम्पल साइन अप पे गए, ये डेटा फिलअप किया, ओके, और ये कहीं पे तो जाके स्टोर हो रहा है, राइट, डेटाबेस में, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी रहेगी? आपकी बैक एंड डेवलपर की। और फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या रहता है? दोनों का मिक्स रहता है, उसको फ्रंट एंड भी पता होता है और बैक एंड भी पता होता है। एंड्रॉइड डेवलपर आपके मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए Sir, रिस्पॉन्सिबल your होता है। voice is breaking. ओके गाइस, कैन समवन प्लीज कंफर्म, आ रही है आवाज अभी? Yes, sir. क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके Yes, sir. ओके, Clear, फाइन, clear. ठीक है, थैंक यू। ओके, यस। सो राइट, ओके, सो जैसे डेवलपर एंड्रॉयड डेवलपर है तो वो एंड्रॉयड ऐप के लिए काम करेगा, iOS डेवलपर है तो iOS ऐप के लिए काम करेगा, राइट। सो इन अ सिमिलर मैनर डेवलपमेंट टीम का काम है जो भी उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग करेंगे और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, राइट। सो ये हो गया थर्ड वन फेज, दैट इज द डेवलपर फेज, राइट। सो यहाँ पे देखिए हर एक फेज में कुछ ना कुछ है ना डॉक्यूमेंट फॉर्म हो रहा है, इस पे फोकस कीजिए। हमें हमें एट द एंड ऑफ टेस्टिंग के लिए वही चाहिए होता है। जो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कीजिए कि डेवलपर ने प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, राइट, तो उसने उसके कंप्यूटर के अंदर की, राइट। सो उस एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। सो जैसे इनका है ना एक फेज ऑफ डेवलपमेंट खत्म होता है तो उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो भी है, तो वो सॉफ्टवेयर हमें टेस्टिंग के लिए तो चाहिए, राइट। सो इन दैट सिचुएशन जो भी सॉफ्टवेयर है, ओके, सॉफ्टवेयर है, इसका क्या बनता है? इसको बोलते हैं बिल्ड। जब तक ये मार्केट में नहीं होता, राइट, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम इसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बिल्ड नंबर या सॉफ्टवेयर बिल्ड। ओके, इन शॉर्ट जो भी डेवलपर ने प्रोग्रामिंग किया है, जो भी कोडिंग किया है, इसका जो भी वेबसाइट या जो भी मोबाइल एप्लीकेशन बनेगा
वो मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको अभी तक टेस्ट करना बाकी है, राइट। उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बिल्ड। और एज अ टेस्टर हमें टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, यही सॉफ्टवेयर बिल्ड चाहिए, राइट। यही सॉफ्टवेयर बिल्ड चाहिए। तो इसका क्या हो सकता है, यूआरएल, जैसे वेबसाइट होता है ना उसी तरह। या अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपका एपीके रहेगा, मोबाइल ऐप। एंड्रॉइड के लिए आईओएस की बात करते हैं तो उसका जो भी आईओएस का रहेगा, राइट, आईओएस का पर्टिकुलर उसका पैकेज रहेगा, राइट, रिस्पेक्टिवली। अगर आप वेबसाइट की बात करते हैं तो उसका यूआरएल रहेगा, एंड्रॉयड ऐप की बात करते हो तो उसका एप्लीकेशन रहेगा, या आईओएस की बात करते हैं तो उसका पैकेज रहेगा, रिस्पेक्टिव आईओएस पैकेज। ओके, सो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड। ओके ओके, सॉफ्टवेयर बिल्ड, राइट। सो ये पर्टिकुलरली आपको कहाँ से मिलेगा, डेवलपर से मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये फेज में, डेवलपमेंट के फेज में जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा उसका पर्टिकुलर यूआरएल रहेगा, एप्लीकेशन का पैकेज रहेगा, या जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से उसका पैकेज रहेगा, राइट। सो ये हो गया आपका डेवलपमेंट फेज। और ये जैसे ही डेवलपमेंट फेज, पर्टिकुलर डेवलपमेंट फीचर का कवर अप होता है तो हमें नेक्स्ट मेनली फोकस करना है टेस्टिंग पे। तो यहाँ पे अपना काम आता है, राइट। सो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, सॉफ्टवेयर को, देखिए, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, राइट, ये अपना मेन काम है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। और इसी के अंदर है ना दो प्रोफाइल आते हैं, जैसे हमने बात की थी प्रीवियसली भी, मैनुअल टेस्टर, ओके, एंड सेकेंड वन ऑटोमेशन टेस्टर, राइट, ऑटोमेशन टेस्टर। ओके, ये दो प्रोफाइल्स आते हैं इसी के अंदर, और भी है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स, बट मेजरली ये दो है। सो मैनुअल टेस्टिंग में है ना हम क्या चीज चेक करते हैं ना, अभी आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया आएगा। फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं इसमें हम। ओके, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, अनदर वन इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, और ये सेम चीज ऑटोमेशन में भी होती है, बट यहाँ पे हम किस चीज का यूज लेते हैं, कोई तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में लेते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स। ओके, टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही होता है, उसी के हिसाब से हम ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेस्टर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसी के साथ एड ऑन हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स। तो हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं मैनुअल टेस्टिंग पे। ओके, सो देखिए अभी तक हमने रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर ली, उसका डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, डेवलपर टीम ने उसको पर्टिकुलरली जो भी है, आपका अगर वेबसाइट है तो उसको डेवलप कर लिया, कोड कर लिया, और उसका एक सॉफ्टवेयर बिल्ड बन गया, राइट। और पर्टिकुलर बिल्ड का यूआरएल रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, राइट। सो अभी एज अ टेस्टर हमारा काम क्या है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, राइट, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। उसी में भी अपने दो प्रोफाइल्स हैं विद इन अ सॉफ्टवेयर टेस्ट, वन इज योर मैनुअल एंड अनदर वन इज ऑटोमेशन। सो मैनुअल में हम क्या चेक करते हैं ना, बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं एंड नॉन फंक्शनल। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की। अभी देखिए अपना रोल तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आप सॉफ्टवेयर बनेगा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसका जो टेस्टिंग करेगा वो टेस्टर करेगा। और टेस्टर भी टू काइंड ऑफ प्रोफाइल रहेगी, वन इज योर मैनुअल एंड अनदर वन इज ऑटोमेशन। सो इन केस ऑफ मैनुअल आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर इन केस ऑफ ऑटोमेशन तो हमें कोई तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, अलॉन्ग विथ एक टूल का नॉलेज होना चाहिए, वो भी मैं अपकमिंग सेशंस में कवर करने वाला हूँ, राइट। तो अभी हम बात करते हैं मैनुअल में फंक्शनल टेस्टिंग की। फंक्शनल मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे, कोई भी न्यू यूजर है जिसका फेसबुक का अकाउंट नहीं, तो वो तो लॉग इन नहीं कर सकता, राइट। उसको तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया रहेगा, ब्राउजर ओपन किया, देन फेसबुक का लिंक पुटअप किया, राइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पुटअप करता हूँ, हम फंक्शनल की बात कर रहे हैं थोड़ी यहाँ पे, फंक्शनल टेस्टिंग की। ओके, तो स्टेप वन में मैंने क्या किया, देखिए ब्राउजर जो है, ब्राउजर ओपन किया, राइट। फर्स्ट स्टेप में ब्राउजर ओपन किया, लेटर ऑन सेकंड स्टेप में यूआरएल एंटर किया। ओके, कौन सा, अभी अभी के एग्जांपल के लिए फेसबुक का, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैं डायरेक्टली यूजर नेम पासवर्ड पुटअप नहीं कर सकता, आई नीड टू रजिस्टर फॉर अ आई नीड टू रजिस्टर अकाउंट, राइट। मुझे एक अकाउंट चाहिए
फेसबुक का अकाउंट चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। चलो लेट्स गो टू द वेबसाइट। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीजें मुझे क्या करनी पड़ेगी, फिलअप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जो भी है ये चीजें फिलअप करके मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने कुछ भी डिटेल फिलअप नहीं किया। जो ये स्टेप्स है ना आपके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा रे, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपकी, डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, राइट। एंड फिलअप करके आपको एट द एंड किस पे क्लिक करना है, देखिए साइन अप पे क्लिक करना है, राइट। क्लिक ऑन, सो क्लिक ऑन साइन अप, राइट। सो बेसिकली अंडर फंक्शनल टेस्टिंग ये हो गए आपके टेस्ट स्टेप्स। ओके, इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। और पर्टिकुलरली ये जो टेस्ट स्टेप्स हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, इसी को बोलेंगे आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग अ टेस्ट केस, मतलब आपका पर्टिकुलर टेस्ट केस है ना, इसको तो हम फर्स्टली डॉक्यूमेंट करेंगे जिस हिसाब से अभी हमने देखा, और लेटर ऑन नेक्स्ट फेज में उसके एग्जीक्यूशन के टाइम में ना सिमिलर डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे और सिंपली साइन अप करेंगे, राइट। साइन अप करेंगे। सो ये प्रोसेस जो हमने किया ना, इसी को बोलेंगे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है उसका हमने क्या चेक किया, फंक्शनल पार्ट की, बस ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, राइट। मतलब कस्टमर के हाथ में जाने से पहले हम एज अ टेस्टर, एज अ टेस्टिंग टीम हम इसको चेक करेंगे अपने साइड से। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शनल। अभी नॉन फंक्शनल क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन तो कंपनी ने, हमारे सॉफ्टवेयर टीम ने बना दिया, राइट। और क्लाइंट की नीड है, एसबीआई क्लाइंट की नीड है फॉर एग्जांपल कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एक्सेस करना है, 1000 यूजर को करना है, 10,000 को करना है, 1 लाख को करना है। सो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उतने नंबर ऑफ यूजर्स ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस करने के बाद एप्लीकेशन स्लो हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है, फास्ट चल रहा है, क्रैश हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो भी चीजें है ना, ये कम्स अंडर दी नॉन फंक्शनल। ओके, उसका फंक्शनलिटी से ज्यादा रिलेशन नहीं है, राइट। उसका किस चीज से रिलेशन है, नॉन फंक्शनल की अगर बात करते हैं हम, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस पिक्चर में आता है, राइट। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस पिक्चर में आता है। यहाँ पे हम क्या चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसके ऊपर लोड दे दो, उसके ऊपर ट्रेस दे दो, राइट। और नंबर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम उसको एक्सेस करने की कोशिश करो तो एप्लीकेशन सही से चलना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। और भी होता है इसमें इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, मतलब पर्टिकुलर अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसका इंस्टॉलेशन भी इजी होना चाहिए, राइट। इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, इस पे डेडिकेटेड स्लाइड है गाइस। ओके, अभी जस्ट हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं अनइंस्टॉलेशन, राइट। सो ये सारी चीजें किस चीज में कवर होगी, आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, मतलब वो बिहेव कैसे कर रहा है, परफॉर्म कैसे कर रहा है, राइट। और अगर हम फंक्शनल की बात करते तो वो जो फीचर क्लाइंट ने बताया था उसी तरह से चल रहा है नहीं चल रहा, ये चेक करने का काम हमारा है। हम दोनों भी जगह काम करते हैं, फंक्शनल साइड पे भी और नॉन फंक्शनल साइड पे भी। बट ऑन अ नॉन फंक्शनल साइड हमें टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भी हमें थोड़ा टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। सो आउट ऑफ दिस हम प्राइमरी फोकस रखते हैं ऑन अ फंक्शनल पार्ट। ओके, सो अंडरस्टूड गाइज बेसिक डिफरेंस। अभी तक कुछ क्वेरी, क्वेश्चन गाइज इस पे, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Understood. ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है चलो। ओके, सो ये Yes. यस आपको है ना अभी एज ऑफ नाउ हाई लेवल पे समझ लो, लेटर ऑन आपको इन डिटेल हर एक चीज का टॉपिक है। ओके, ठीक है चलो, ग्रेट। ओके, अभी तक देखो गाइज हमने क्या क्या किया, मैं वापस से एक बार, क्योंकि यही इंटायर प्रोसेस है। ओके, इसी को हमें एकदम प्रॉपरली समझना है, एकदम प्रॉपरली। ओके, सो फर्स्ट फेज में हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली क्लाइंट से या मार्केट से, देन हमने थोड़ा उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, लेटर ऑन हमने उसका डिजाइनिंग किया, देन डेवलपर टीम ने उसको डेवलप किया, जो भी है मोबाइल ऐप, वेबसाइट, जो भी है आपका। ओके, लेटर ऑन एज अ टेस्ट टीम हमने उसको टेस्ट किया, मैनुअल टेस्टर टीम ने फ्रॉम फंक्शनल साइड चेक किया, नॉन फंक्शनल साइड चेक किया, राइट। एंड ऑटोमेशन टीम ने उसका थोड़ा लाइक ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग स्किल और ऑटोमेशन टूल यूज करके भी उसको टेस्ट किया। जैसे ही टेस्टिंग फेज खत्म होता है गाइस, ये वाला, ओके सॉरी,
ये वाला टेस्टिंग फेज खत्म होता है तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अभी हमें क्लाइंट को एक बार दिखाना होता है, राइट। क्लाइंट का जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते थे, जिससे क्या होगा कि जो भी, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम क्लाइंट के साथ एक बार बैठते हैं, यही पे टेस्टिंग में फेजेस होते हैं, उसमें भी मैं आऊंगा, ठीक है। हम क्लाइंट का अप्रूवल लेते हैं, क्लाइंट जैसे ही अप्रूव करता है तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, लाइव करते हैं। लाइव मतलब कोई भी एंड कस्टमर, पर्टिकुलर बैंक का कोई भी कस्टमर है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ गए, इट मीन्स कोई भी यूजर एक्सेस करता है, कर सकता है। वेबसाइट उसका लाइव हो गया, इट मीन्स कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। जो एसबीआई का यूजर है या नहीं है तो भी एक्सेस कर सकता है। सो उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय इन द सेंस जो भी क्लाउड में सर्वर्स होते हैं या कंपनीज के जो भी सर्वर्स होते हैं ना, वहां पे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ आप समझ लो इंस्टॉल किया जाता है, और पब्लिकली उसको हम यूजिंग यूआरएल, हम एक्सेस कैसे किया था रे, फेसबुक www.facebook.com से किया था, राइट। और सेकेंड थिंग हमने एक्सेस कैसे किया था, उसके आईपी एड्रेस से, करेक्ट, ठीक है। सो जो भी पर्टिकुलर सर्वर रहेगा ना, उसी के आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है वेबसाइट के नेम में। डीएनएस का रोल होता है यहाँ पे, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन फेज में। डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम का रोल होता है। एज ऑफ नाउ आप समझ लो, जो भी वेबसाइट लाइव है उसका एक वेबसाइट रहेगा और उसी का एक आईपी एड्रेस रहेगा, राइट। यूजिंग दैट जो भी एंड कस्टमर क्लाइंट्स है वो इसको यूज करेंगे, राइट। जो भी बैंक के कस्टमर्स है, राइट, वो पर्टिकुलर उनके वेबसाइट पे जाके खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद के जो भी ट्रांजेक्शन है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वन इज योर डिप्लॉयमेंट फेज। अभी ये तो हो गया डिप्लॉयमेंट, मतलब अभी एंड यूजर इसको यूज करने लग गया। फेसबुक है तो उसका रजिस्टर करने लग गया, फ्रेंड उसको लॉग इन किया उसने, देन फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, बहुत सारे फंक्शंस वो एक्सप्लोर करने लगा। अभी क्या होता है ना, देखिए डे टू डे या एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट या एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 5 साल पहले हमने जो फेसबुक देखा था उससे तो अभी बहुत ही बेटर है, राइट। या 5 साल पहले हम जो भी वेबसाइट देखते थे, गूगल देखते थे, कोई भी फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, जो भी वेबसाइट देखते थे, उसमें और अभी के वेबसाइट में बहुत सारा डिफरेंस है, राइट। बहुत सारे फीचर्स बढ़ गए, उसका लुक एंड फील, सारी कुछ चीजें चेंज हुए। तो ये बेसिकली किसके अंडर होता है, आपका मेंटेनेंस के अंडर होता है। और यहाँ पे है ना एक वर्ड यूज किया जाता है, चेंज रिक्वेस्ट, ओके, सीआर बोलते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ आईटी कंपनी, चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको याद रखना है थोड़ा, ये रिक्वायरमेंट के टाइम भी आता है और ड्यूरिंग मेंटेनेंस भी आता है, चेंज रिक्वेस्ट, ओके। चेंज रिक्वेस्ट मतलब क्या, आपका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अप एंड लाइव है, यूजर्स यूज कर रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए ना, लाइक का बटन चाहिए, मुझे शेयर का बटन चाहिए जो ऑलरेडी एप्लीकेशन में नहीं है, तो वो हो गया आपका पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट, राइट। या सॉफ्टवेयर में कोई बग फाउंड हुआ कि आपने मैसेज तो टाइप किया है सामने वाले फ्रेंड को बट उसको डिलीवर नहीं हो रहा है, राइट। ये पर्टिकुलर जो भी चीजें फाइंड होती है ना, जब प्रोडक्ट डिप्लॉय होता है, लाइव होता है, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फेल्यूर। हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, एरर डेवलपर पे साइड पे रहेगा, सिंटैक्स या टाइपिंग एरर, सेकेंड चीज हमने डिस्कस की थी दैट इज द डिफेक्ट। तो यहाँ पे वो थोड़ा मैप कर लेते हैं, डेवलपर के साइड पे जब भी ये डेवलपमेंट करेगा ना, तो यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर, राइट। टेस्टिंग टीम जब भी चेक करेगी, यहाँ पे जो भी हमें फाइंड आउट होगे वो क्या हो गया, डिफेक्ट और बग्स, ओके, यहाँ पे टेस्टिंग में। और जब डिप्लॉयमेंट होगा सॉफ्टवेयर और यहाँ पे अगर किसी को कस्टमर को डिफिकल्टी आ रही है, हमने कोई मैसेज किया, लाइक किया, फिर भी लाइक नहीं हो रहा है, हमने कोई कमेंट डिलीट किया, फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है, सो दैट इज द डिफरेंस इन योर फंक्शनलिटी, राइट। जो चलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फेल्यूर बोलते हैं, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का फेल्यूर। या हम अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा मोबाइल एप्लीकेशन हैंग हो रहा है, क्रैश हो रहा है, उसको मतलब उसको एग्जिट करके वापस से रीलॉग इन करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में जाके उसका रेटिंग घटा देते हैं, राइट। या बहुत सारा गंदा गंदा कमेंट लिख डालते हैं, राइट, कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, फालतू ऐप है, ये है, वो है। सो वो हो गया आपका फीडबैक, मतलब एंड कस्टमर ने उसको क्या रिपोर्ट किया, फीडबैक। इन अ सिमिलर मैनर
जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, एसबीआई के क्लाइंट्स है, वो कहाँ पे कॉल करेंगे अगर उनका मोबाइल ऐप नहीं चल रहा है, उनका अकाउंट सही से नहीं चल रहा है, तो एसबीआई को कांटेक्ट करेगा। लेटर ऑन एसबीआई कहाँ पे कांटेक्ट करेगा, पर्टिकुलर कंपनी को करेगा जो भी उनका मेंटेनेंस देख रहा है, राइट। सो ये होता है बेसिकली मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस में है ना गाइस, लेवल्स होते हैं, EL1, EL2 एंड EL3। आपको जस्ट हाई लेवल पे समझना है। EL1 मतलब आपका है ना एक काइंड ऑफ टोल फ्री सपोर्ट होता है, जहां पे आप कॉल कर सकते हो और आपके बेसिक क्वेरीज रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको बेसिक लेवल का सपोर्ट मिलता है। लेटर ऑन EL2 में है ना, ये लोग आपका अकाउंट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप है ना सिम कार्ड का एग्जाम्पल ले लो, आपका फॉर एग्जाम्पल एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, कोई भी सिम कार्ड है, तो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहता है अपना, EL1 रहता है, जहाँ पे हम कॉल करके कस्टमर केयर से बात करते हैं कि हमारा ऐसा इशू आ रहा है, नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, रिचार्ज किया था बट फेलियर हो रहा है। प्रीवियसली बहुत ज्यादा होता था, एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हो ना तो कंपटीशन के हिसाब से सर्विस बढ़ गया है, राइट। मतलब सर्विस की क्वालिटी बढ़ गई है, बट प्रीवियसली बहुत कॉल ड्रॉप होते थे, सही से रेंज नहीं आता था, बहुत सारे इश्यूज थे, राइट। तो वो हम EL1 लेवल पे अपडेट करते हैं। EL2 लेवल क्या होता है ना, बेसिकली इनको एक्सेस होता है, राइट, डेटा का एक्सेस होता है, एक्सेस टू डेटा, सम बेसिक एक्सेस टू बेसिक डेटा। तो वो जैसे हम कॉल करते हैं तो वो बता देते हैं कि आपका ये है, ये इशू है, वो इशू है, राइट। बेसिक चीजें चेक करते हैं सिमिलर सॉफ्टवेयर में भी, और बता देते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर इशू है। और EL3 मतलब है ना, यहाँ पे आपका चेंज होता है सॉफ्टवेयर में, एक्चुअल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे चेंजेस होते हैं सॉफ्टवेयर में। ओके, कोई अगर डिफिकल्टी या फेल्योर होता है ना पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे एक्चुअल चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट टीम, ओके, डेव टीम एंड टेस्टिंग टीम दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर चेंज होता है ना फ्रॉम द डेवलपमेंट साइड, तो उसको टेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टेस्टिंग टीम का। ओके, सो इस तरह से काम होता है। देखिए कोई भी इशू आता है तो प्रीवियसली यहाँ पे लॉक होता है, देन बेसिक चीजें चेक होती है, एंड यहाँ पे भी सॉर्ट नहीं होता है, तो वो बताते हैं कि वी हैव एस्केलेटेड योर केस टू आवर सीनियर टीम। तो यहाँ पे आती है बेसिकली, और यहाँ पे चेंजेस रिवर्ट होके हम इनको बता देते हैं कि भाई इशू सॉल्व हुआ है, आप कस्टमर को बोलो, या हमारा अगर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है विद द कस्टमर तो हम भी बता सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है गाइस। क्लियर आइडिया गाइस, मतलब ये 6 फेजेस आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, और इसमें क्या क्या काम होता है बेसिक ये आपको पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन गाइस ऑन दिस 6 फेजेस, स्टार्ट से लेके एंड तक समझा टोटल, मतलब ओवरऑल तो समझ आ गया, डिटेल तो हम देखने ही वाले हैं। रिवीजन मारना पड़ेगा एक बार। हाँ ठीक है, नहीं वो तो करेंगे नो डाउट। बट आपके एंड से कुछ क्वेश्चन क्वेरी, मतलब नहीं, हमको ही रिवीजन मारना हाँ पड़ेगा। हाँ ठीक है, अचानक से समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं बट इजी है गाइस, मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है, राइट। नहीं, बराबर। जिनको कुछ भी पता नहीं उनको आइडिया तो आ रहा है ना बॉस की सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कौन कौन से फेजेस से जाता है, राइट। 100% आ रहा है। हाँ चलो, मुझे वही चाहिए, मुझे टेक्निकल अभी भी टेक्निकल कुछ नहीं चाहिए आपसे आंसर, मुझे आपको समझना चाहिए कि बॉस एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, और एज ए टेस्टर मेरा काम क्या। आइडिया आ गई है तो क्या है क्या। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। मतलब इंटरेस्ट जब आएगा ना गाइस, तभी हम स्टडी कर पाएंगे, राइट, तभी कुछ चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे। इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो काम क्या करेंगे, खाक। राइट, ठीक है, चलो आई विल बी